Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal. So I am here with another set of actual previous year questions from CUT PG for CSNIT for Computer Science and Information Technology. And this exam is used for admission to MCA courses of different good universities, including all the central universities, and also for admission to MSc Operations such MSc Computer Science and MSc IT, MSc Cyber Security and all the allied disciplines. तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के. नाउ दिस इज द पार्ट 7. इसमें भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं. व्हेन यू मस्ट हैव सीन ऑल दोस पार्ट्स, देन you should be knowing everything about this type of examination, this examination CUET, which is conducted by National Testing Agency. Okay, और जो मेथड्स मैंने अडॉप्ट करे हैं वो मेथड्स अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे, और हम करते हैं क्वेश्चंस को कुछ यूजिंग दोज स्मार्ट मेथड्स. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन. सो द अरिथमेटिक मीन of two observations is 125 and their geometric mean is 60. Find the harmonic mean of the two observations. Quite an easy one. दो observations पे geometric, arithmetic and harmonic mean का relation होता है g square is equal to ah. A is arithmetic mean, g is geometric mean, h is harmonic mean. That is known to everyone. Okay, that's known to everyone. This is the relationship between geometric, arithmetic and harmonic mean, and then you make all the substitutions. So it gives you 60 square is equal to arithmetic mean is 125 into h. Okay, and you are just interested in finding the harmonic mean. So harmonic mean is 60 into 60 or upon 5 into 5 into 5, that is 125. Like, or you can directly write 125. It's just a matter of cancelling these things out. So you cancel it. That is 144 upon 5, and 144 upon 5 on simplification gives you 28.8. So 28.8 is the answer. Quite an easy problem, you know. कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं, कोई ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं. सो इट वाज क्वाइट एन ईजियर वन. तो देखते हैं, दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं. या दैट्स ए क्वाइट ए लेंथी प्रॉब्लम. और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार CUT में आए हैं, इवन निमसेट में भी आए हैं. दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, निमसेट इज एन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू NITs. द मेजर डिफरेंस इज NITs के MCAs आर ऑल ऑफ द 3 years ड्यूरेशन. CUET के थ्रू जितने भी एडमिशन है MCA में, दे आर ऑल 2 years MCAs, बट द वैल्यू इज द सेम, यू नो. So in 2 years, after 2 years, you can just go to join the industry and have that fruitful experience. क्योंकि ज़्यादातर रिसर्च कहती है कि जब आप पढ़ के निकलते हैं तो आप पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं होते हैं. You do not know what actually happens in industry. So if you get an industrial experience, that is always आपके बेनिफिट में जाता है वो. ओके, अभी देखते हैं अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सीरीज ऑफ 20 items were calculated by. Times were wrong. It is misprint. It is items. So the arithmetic mean and geometric standard deviation of series of 20 items were calculated by a student as 20 and 5 respectively. But while calculating them, an item 15 was misread as 30. Find the correct standard deviation. यदि करेक्ट मीन निकालते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजियर, बट स्टैंडर्ड डिविएशन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. तो यदि कभी भी इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो लेट दिस बी अ लास्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड. ओके, इसे बीच में मत करिए बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं और स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डिविएशन में. तो किसी नंबर का जरूरी नहीं है ना स्क्वायर रूट के अंदर 16 आएगा, 25 आएगा कि आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल के 5 या 4 लिख देंगे. लाइक इट मे बी द फ्रैक्शनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालना भी दिक्कत हो सकती है. मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ ये मेथड. वैसे आप में से ज़्यादातर को आता होगा, पहले भी मैंने करा है. मीन के लिए तो मैं शॉर्टकट डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, बट स्टैंडर्ड डिविएशंस के लिए यू विल हैव टू डू होल ऑफ द कैलकुलेशंस, सो विच विल बी टेकिंग क्वाइट सम टाइम. तो आई एम अगेन सजेस्टिंग यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो इसे सबसे आखिर में करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है. देन व्हाई टू डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है. ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी रहेगी. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग थिंग्स लेट अस ट्राई टू डू इट हेयर. ओके, यहाँ पे हम करके देखते हैं. तो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 20. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 20. So 20 observations are there. And what is your mean? Mean is 20. Incorrected mean है ये. And what is your variance? Variance is 5. These are all incorrected. जिसमें आपने mistake कर रखी है. And what is your mistake?
योर मिस्टेक इज आपने 15 को 30 पढ़ लिया। तो पहले हम मीन को करेक्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी मीन का फॉर्मूला यूज होता है। तो फर्स्ट आई विल बी करेक्टिंग मीन। तो अब आपका मीन होगा क्या? आई एम वर्किंग जस्ट ऑन दिस डाटा, दैट इज समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, this implies 20 is equal to summation xi upon 20. So it means summation xi's number of sum of observations is 400, which is obviously the incorrected one with the misread entry. तो अब हमें इसे करेक्ट करना है, तो करेक्टेड के लिए हमें क्या करना होगा? करेक्टेड summation xi. I hope you all know this method. टोटल सम में से उसे हटाइए जो आपने गलती से पढ़ लिया था और उसे ऐड कीजिए जो आपको पढ़ना चाहिए था, और फिर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसे डिवाइड कर दीजिए। सो 400 माइनस 30 प्लस 15, सो इट वुड बी दिस विच विल कम आउट टू बी 19.25. सो दिस इज द करेक्टेड मीन। दिस इज द करेक्टेड मीन। दिस इज द करेक्टेड मीन। ठीक हो गया सब लोगों को? तो मैं इसको आगे से ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, मीन विच इज करेक्टेड। सी नीचे लिख दिया फॉर करेक्शन। अब हम आते हैं वेरिएंस के फॉर्मूले पे, बट वेरिएंस के लिए आप सबको याद होगा जब आप वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस में क्या फॉर्मूला आता है? समेशन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। इट मीन्स यू हैव टू डू दोस कैलकुलेशंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम करेक्शंस करते हैं। सिग्मा एक्स यहाँ पे है ही मेरे पास। अब हम सबसे पहले निकालते हैं करेक्टेड। ये सबसे पहले निकालने की मुझे ये जरूरत है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस। तो करते हैं इसे प्रोसीड। यहीं पे कहीं यूज कर लेते हैं। तो अभी हम ये कहेंगे दिस इज इक्वल टू ईयर 5। दिस इज इक्वल टू ईयर 5। आपने स्क्वायर कर दिया, दैट इज 5 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। और ओरिजिनल मीन कितना था आपका? 20 था। 20 का स्क्वायर दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया। 25 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वेयर अपॉन 20 माइनस 400। ठीक है, और आप इसे अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब जस्ट सिंप्लीफाई इट तो समेशन एक्स आई स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा एंड समेशन एक्स आई स्क्वेयर विल कम आउट टू बी 8500। दिस इज द ओरिजिनल वन, नॉट द करेक्टेड वन। जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिनल निकाला था और फिर हमने करेक्टेड निकाल दिया था मीन, जिसे हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया था। ये करेक्टेड एक्स आई है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये करेक्टेड मीन आ गया 19.25। कई बार क्या एडवांटेज मिलता है कि एग्जामिनर दोनों क्वेश्चंस पूछ लेता है, मीन भी और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। तो हम मीन सबसे पहले निकालते हैं 19.25 एंड यदि फॉर्चुनेटली एक ही चॉइस में मीन 19.25 हो तो हम स्टैंडर्ड डिवीएशन छोड़ के उसी को आंसर कर देते हैं। और वही एग्जामिनर की टेंडेंसी भी होती है, अप्रोच भी होती है कि वो सारी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहते, वो खाली ये देखते हैं कि आप किस तरीके से चॉइसेस को यूज कर सकते हैं। सो बट हेयर दे हैव गिवन ओनली द स्टैंडर्ड डिवीएशन, तो हम ये स्मार्टनेस यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। विल हैव टू कैलकुलेट थिंग्स ओवर हेयर। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया। अब हमें करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ, फिर अगले पेज पे चले जाएंगे because I'll need more calculations. तो करेक्टेड या देखते हैं करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वेयर। यू नो व्हाट इज टू बी डन। ये ओरिजिनल हो गई, इसमें से माइनस करा 30 का स्क्वायर और इसमें प्लस करा 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वेयर हो गया। मेथड तो वही रहेगा सारा का सारा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 7825। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 7825। अब आपको निकालना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहीं पे कर ले करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी फॉर करेक्टेड, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका कितना आ जाएगा? 7825 अपॉन 20 माइनस करेक्टेड मीन। व्हाट इज योर करेक्टेड मीन फ्रॉम हियर? 19.25 19.25 होल स्क्वायर। ये आपका करेक्टेड मीन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का पोर्शन अलग है। आप सब लोगों को पहले से ही आप लोग जानते हैं कि साइनमैक्स की वेबसाइट पे भी आप कंप्लीट सॉल्यूशंस देख सकते हैं।
पूरे मैथमेटिकल फॉर्मेट में, नॉट द शॉर्टकट्स, बट यदि इन शॉर्टकट्स की, या जो भी मैं यहाँ समझाता हूँ उनकी स्क्रिप्ट चाहिए तो हर लेक्चर के नीचे एक लिंक दिया हुआ होता है, उस पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आपको वो लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, लाइक आपको वो लेक्चर स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बट आपने देखा कि कैलकुलेशंस तो इन्वॉल्व हैं काफ़ी। 7825 अपॉन 20 माइनस 19.25 होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 20.68 जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, एंड विच कम्स आउट टू बी 4.54 विच इज कमिंग आउट टू बी 4.54. So this should be your answer, but it was not an easy one. Method was not tough, but the calculation was tough. आपको देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे 20.68, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या रिवर्स मेथड में चलेंगे मल्टीप्लाई करके, तो कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने एडवाइस करा था शुरू में कि यदि ये क्वेश्चन आप पेंडिंग डाल सकते हैं तो पेंडिंग डालिए, आपको हर हालत में से पेंडिंग डालना चाहिए। पहले आप और क्वेश्चंस को करिए, जब आप पे कोई और क्वेश्चंस ना बचे करने के लिए तब आप इस पे आइएगा, और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है एंट्रेंसेस में। नोबडी इज एबल टू डू 100% ऑफ द पेपर, ओके। तो व्हाई टू स्पेंड टाइम ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, खाली इसलिए कि आपको मेथड आता है, आपको ये नहीं करना है। मेथड आने के बाद भी इतनी सारी कैलकुलेशंस में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी है, और टाइम टेकन वुड बी मच लॉन्गर देन अदर क्वेश्चंस। ठीक हो गया, समझ आ गया? दैट्स माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। सो दैट वाज योर दिस क्वेश्चन, एंड देन कम्स द next question. Given the marks of 25 students in the class, given the marks of 25 students in this class as this, marks lie in the range of 1 to 100, 1 से 100 तक के बीच में marks हैं, and m bar is the mean, which of the following quantity has the value 0. I think it is something which is very very easy and everybody knows about this. इसमें तो कुछ solve करना ही नहीं है हमें, this has to be our answer. Why this has to be an answer? It is a fundamental result from statistics that the sum of deviations of given data from its mean is always 0. Sum of deviations of a given data from its mean is always 0. अब करके भी देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, यदि आप सिचुएशन देखना चाहें। आप पे सपोज ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, ओके। तो इसका मीन कितना हो गया, आप यदि मीन देखना चाहें, वैसे तो 3 होगा, 5 4 9 10 2 12 3 15, 15 अपॉन 5 दैट इज 3 हो गया। अब आप डिविएशंस देखना शुरू कीजिए, 1 माइनस 3, मॉड नहीं लेना है, खाली डिविएशन ले रहे हैं। मैंने पहली चॉइस नहीं ली है, स्टूडेंट गलती करते हैं, पहली नहीं लेनी है, वो 0 नहीं होगा, ओके। प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3, एंड व्हाट इट बिकम्स, दैट इज माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, एंड दैट इज 0। आप खुद देखिए, इलस्ट्रेशन हो गया ना, बट जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस रिजल्ट। आप भी ध्यान रखिएगा, द सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0. देन कम्स नेक्स्ट एग्जांपल, दैट्स क्वाइट अ गुड वन, दैट्स क्वाइट अ गुड वन। नाउ व्हाट इट सिंपली सेज, लॉग इसमें इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। लॉग है एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ये टर्म्स है, 1 log x to the base y, log y to the base z, एंड माइनस 15 log z to the base x, और ये गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, तो हमने सपोज कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा, सो सपोज कॉमन डिफरेंस इज डी। अब हमने ऊपर से यूज करा log x to the base y should be 1 plus d, 1 is the first term. Similarly, log y to the base z should be 1 plus 2d. Good. And similarly, log z to the base x minus 15 should be 1 plus 3d. और आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू गेट इन द सेम फॉर्मेट, log z to the base x is minus 1 plus 3d अपॉन 15। यहां तक आप आ गए, ठीक है ना। दोबारा से समझा देता हूं, हो सकता है मैं आगे आ गया हूं इसके, तो आप में से कुछ लोगों को दिखा ना हो क्या है। ये 4 टर्म्स हमें दी गई हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, हमने कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लिया डी। तो जो ये टर्म है, दूसरी टर्म इस फर्स्ट प्लस कॉमन डिफरेंस, तीसरी टर्म फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, चौथी टर्म फर्स्ट प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। और अब हमने एंटी लॉग की प्रॉपर्टी सिंपली यूज कर ली, तो x इज इक्वल टू वाई रेज टू 1 प्लस डी। ठीक है, यहां से हमने यूज कर लिया y इज इक्वल टू जेड रेज टू 1 प्लस 2d, और यहां से हमने यूज कर लिया z इज इक्वल टू
x रेज टू माइनस 1 प्लस 3d अपॉन 15। देखिए कितना इजी है। अब यहां तक पहुंच गए, आपने ये जो येलो में मैंने लिख रखा है एक्स वाई और जेड के एक्सप्रेशंस आपके पास आ गए। बट अल्टीमेटली आपने इसे सॉल्व तो करना ही है ना, ये रिसॉल्व इट। तो हम x की वैल्यू और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दिस, ये y मैं यहां उठा के पुट करूंगा, y z में है, और z की वैल्यू यहां से पुट करूंगा, तो लेफ्ट भी x हो जाएगा, राइट भी x हो जाएगा। 1 by 1 चलते हैं। यहां पे मैंने करा y रेज टू 1 प्लस जेड, इट मीन z रेज टू 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d। ठीक है, अब ये z की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने, x y के बराबर था, y की जगह मैंने z की रिप्लेसमेंट कर दी, अब z की जगह मैं x की रिप्लेसमेंट कर दूंगा। व्हाट विल बी दैट, x रेज टू माइनस माइनस ए वाला आ जाएगा 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d अपॉन 15। अब खाली इन दोनों को देखिए, दोनों इक्वल है, ये x की पावर 1 और x की पावर ये, और जब दोनों तरफ x है तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू। फिर तो आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन दोनों से मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d और अपॉन 15, एंड विच गिव्स मी 1 प्लस डी 1 plus 2d and 1 plus 3d is equal to minus 15। समझ आ गया सबको? इट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल बट नॉट दैट टफ। बट कुछ लोग डरते हैं लॉग देख के, बट इतना डरने वाली चीज नहीं थी। हम यहां तक आ गए, हमें डी की वैल्यू निकालनी। अब एक तो है कि मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्यूबिक मिल जाएगा, मैं उसे फैक्टराइज करूं, इक्वेट करूं, सॉल्व करूं और आंसर निकालूं। दूसरा है कॉमन सेंस एज ऑलवेज। अब ये देखिए, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो ये जो डी है ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। आई एम अगेन सेइंग राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो डी पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो जो भी पॉजिटिव चॉइस है वो गलत हो गई। मतलब हर हालत में टाइम सेव कर सकते हैं यदि आप स्मार्ट हैं, यदि आप का ब्रेन आपको इस तरह के रिफ्लेक्सेस देता है कि आपको देख, जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, कोई बस आ रही है तो ब्रेन अपने आप आपको अलर्ट करता है ना कि आपको उसके आगे से नहीं निकलना है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेवलप इन माय स्टूडेंट्स। आपका ब्रेन आपको अपने आप बताए ना हाउ टू प्रोसीड इट, एंड दैट कम्स ओनली थ्रू द प्रैक्टिस एंड द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ओके। तो हमने यहाँ देखा कि राइट हैंड साइड नेगेटिव है, सो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती। डी यदि मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो मेरा लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चॉइसेस दोनों गलत। अब दो नेगेटिव बची, आई हैव टू डिसाइड अबाउट इट। एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हम टाइम सेव कर सकते हैं और ये करना जरूरी था। अब हम टाइम सेव कर रहे हैं इस स्टेज पे, क्योंकि जब हम इसे क्यूबिक बना के सॉल्व करेंगे उसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा, और मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूं अपने स्टूडेंट से कैलकुलेशंस। जिस स्टेज पे आपको लगता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आ गई हैं, वहां कोशिश कीजिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, लॉजिकली सोचने की। अब हम देखते हैं, अब राइट हैंड साइड है इंटीजर, यदि मैं डी को फ्रैक्शन ले लेता हूं, मतलब इंटीजर नहीं लेता हूं, तब भी मैचिंग नहीं हो पाएगी। मुझे इसकी अल्टीमेटली वैल्यू -15 निकालनी है, और -15 वैल्यू लाने के लिए आपको ये जो डी रखना है वो फ्रैक्शन तो ले नहीं सकते, आपको वो इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी खत्म, तो बची खाली क्या, -2। तो -2 इज द आंसर। आप चाहें तो पुट करके देख लीजिए, इफ यू वांट आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और वो तरीका भी होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ब्लाइंडली क्यूबिक सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। पहले हमने पॉजिटिव को हटाया, फिर हमने फ्रैक्शन को हटाया, और यदि इतना नहीं भी चलता तो हम पुट कर करके देख सकते थे। इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। मैंने डी को -2 पुट करके देखा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग द आंसर। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो लोग लेक्चर स्क्रिप्ट मांगते हैं, वैसे तो लेक्चर स्क्रिप्ट हमेशा वीडियो के साथ यूज करनी चाहिए, आपको इस लेक्चर के साथ यूज करनी चाहिए। 1 - 2 1 - 4 और 1 - 6, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी। अब खुद देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, दैट इज -1 इंटू -3 इंटू -5, दैट इज -15। ये लीजिए -15, ये रहा, मैच कर गया। सो -2 शुड हैव बीन द आंसर। सबको समझ आ गया? तो जिस भी स्टेज पे आप टाइम सेव कर सकते हो, टाइम सेव कीजिए। Then comes the last problem of this lot. They want, it is a similar problem, 1 log xy log yz. Yeah, it is the same problem. यहाँ common difference हम already निकाल चुके हैं, so we will be able to use it in the next question. And then they want us to find the value of xy only. So value of xy they want. Okay? और previous question ही है तो थोड़ा सा previous question से help ले लेते हैं।
हमने कॉमन रेशो निकाल लिया है -2। तो एक तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा कॉमन रेशो आ चुका है फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम -2। इस तरह के एग्जाम्पल्स आ जाएं तो बहुत बड़े एग्जाम में कि एक ही डाटा पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं पिछली प्रॉब्लम में, यदि 2-3 प्रॉब्लम और हमें मिल जाती हैं उस डाटा को यूज करने की, तो दैट इज जस्ट लाइक ए बोनस। और हमें निकालना है एक्स और वाई में रिलेशन, तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो यहाँ आ जाइए, x इज इक्वल टू वाई रेज टू 1 प्लस डी। मैं ये भी लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई रेज टू 1 प्लस डी, x इज इक्वल टू वाई रेज टू 1 प्लस डी। अब ये d की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आपको दे देगा x इज इक्वल टू वाई रेज टू -1। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, इट मीन्स xy इज इक्वल टू 1। xy is equal to 1 is the answer. So first choice would be your answer. Okay, so that is first choice would be your answer. तो आपने अब खुद रियलाइज करने लगे होंगे अब इतने लेक्चर्स के बाद कि हाँ, आप मेथड्स ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें आपका टाइम भी सेव हो और आपकी एक्यूरेसी भी आए। लाइक अब तक ये आइडिया आपको लग चुका होगा और ये आइडिया लगना भी चाहिए और आपको ये प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। तो करते रहिए इसी तरीके से और सीखते रहिए। I'll keep on delivering such things to you. Okay. So till then, all the best.